हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्रेज ऑफ कॉमर्स। आज हम देखने वाले इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न फॉर स्टैंडर्ड 12th एचएससी बोर्ड। वो पेपर पैटर्न कैसे होगा एंड फ्यू गाइडलाइंस आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द आंसर्स। आंसर लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, कहाँ ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। फ्यू गाइडलाइंस विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. So please do watch this video till end, and please share it with as much as people you can share who are, for whom this video is very useful, especially for class 12. Clear? Now let's look towards the paper pattern. This is a paper pattern for 80 marks जो final exam के लिए आने वाला है. उसमें से question 1 is from the following types of sub questions any 4 questions will be asked. See, there are total 8 sub questions. ये 8 sub questions में से कोई भी 4 questions पूछे जाएंगे. Each question will carry 5 marks. That means question 1 is going to be of 20 marks. Okay, so first is choose the correct option, complete the correlation, give economic term, find the odd word out, complete the following statements, choose the wrong pair, assertion and reasoning questions, identify the right group of pairs from the given options. ये 8 सब questions में से कोई भी 4 questions will be asked for your examination. So you need to prepare the objectives very thoroughly as it is carrying near about 20 marks. Clear? Next is question 2A. Identify and explain the concept, where you have to solve any 3 which is for 6 marks. That means each question is going to be for 2 marks. Next is distinguish between, again any 3, that means each question will carry 2 marks. Question 3 is answer the following questions, any 3, that is for 12 marks. That means one question is going to carry 4 marks. State with reasons whether you agree or disagree with the following statement. Any 3 questions you have to solve, and that too of 4 marks. That means total is of 12 marks. Next is study the following table, figure, passage and answer the questions given below. टेबल, फिगर एंड पैसेज, ये तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको. दैट इज फॉर 8 मार्क्स. दैट मीन्स वन क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 4 मार्क्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आंसर इन डिटेल. एनी 2 questions you have to solve for 16 marks. That means per question is of 8 marks. So this is what is the overlook of your paper pattern for the subject economics. Now let's understand how to solve each question. ओके, अगर क्वेश्चन 1 में आपको पूछा जाता है चूज द करेक्ट आंसर, ओके, देन हाउ यू सपोज टू राइट द आंसर. सी द क्वेश्चन गोज, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स, नन ऑफ द अबव. उसमें से ऑप्शन फर्स्ट है ए बी सी, सेकेंड है ए बी, थर्ड है ओनली ए, फोर्थ है नन ऑफ द अबव. नाउ वी नो द आंसर इज microeconomics. That means the answer is only A, third option, right? So how you're going to write? Third option, only A, microeconomics. आपको complete specify करना है कौन सा option है, वो option में क्या लिखा है, only A, and you have to write the answer microeconomics. Clear? You need to copy the question. ये पूरा question लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखा तो भी इनफ है. नेक्स्ट, अगर आपको पूछा है कंप्लीट द कोरिलेशन, मतलब 2 टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, दैट यू हैव टू आंसर. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्लाइसिंग मेथड. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ लंपिंग मेथड, राइट? सो वहां से गलती से आंसर फॉरेस्ट आया है. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या है? अगर माइक्रो स्लाइसिंग मेथड है तो मैक्रो क्या होगा? लंपिंग मेथड होगा. क्लियर? सो यहाँ पे सिर्फ आंसर लंपिंग मेथड लिखना है आपको. वहां पे गलती से फॉरेस्ट हुआ है, यू विल राइट देयर लंपिंग मेथड. नेक्स्ट इज गिव इकोनॉमिक टर्म. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट फॉर सेवरल यूजेस. इसका आंसर क्या है? कंपोजिट डिमांड. सो डायरेक्टली यू विल राइट द आंसर एज अ
composite demand. No need to copy the question. Next, find the odd word out. Car and fuel, pen and ink, sugar and jaggery, टीवी and set top box. तो इसमें क्या है आंसर शुगर एंड जैगरी. वाई? बिकॉज शुगर एंड जैगरी ये सब्सटीट्यूट गुड्स है, बाकी के सारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. सो आपका सिर्फ जो आंसर है शुगर एंड जैगरी दैट यू आर सपोज टू राइट. अगर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. When the supply curve is upward sloping, its slope is A option positive, B is negative, C is first positive then negative and 0. तो इसमें से आंसर क्या है पॉजिटिव. सो जस्ट राइट द आंसर एज अ पॉजिटिव. ठीक है. नाउ चूज द रॉन्ग पेयर. आपको इसमें से जो रॉन्ग आंसर है वो चूज करना है. तो आप सीधा आंसर लिखोगे. सपोज यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए. सो यू विल राइट ऑप्शन ए और उसके क्या क्या ऑप्शंस है 1D 2B 3A 4C. ये क्या है रॉन्ग पेयर का आंसर है. तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है रॉन्ग पेयर पूछा है या राइट पेयर पूछा है. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आपको सिर्फ वहां पे ऑप्शन का आंसर लिखना है. नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. आपको असर्शन स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका रीजनिंग दिया जाएगा एंड from that you have to identify or choose between the options whether assertion is true but reasoning is false, assertion is false but reasoning is true, both assertion and reasoning are true and reasoning is correct explanation of assertion, both assertion and reasoning are true and reasoning is not the correct explanation of assertion. इसमें से आपको जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो पूरा स्टेटमेंट कॉपी करना है. दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज सी, ऑप्शन सी. बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो आप वो पूरा लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट एच आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप. तो इसमें से मैच द पेयर्स में से जो राइट आंसर है वो ही लिखोगे आप. ऑप्शन 4 1D 2B 3A 4C. That is the right answer. Okay, this was for the objectives. ये 8 objectives में से कोई भी 4 objectives आपको पूछे जाएंगे. And how to attempt the question वो मैंने आपको explain किया है कि आपको सिर्फ आंसर लिखना है. आपको question लिखने में आपका time waste नहीं करना है. So just focus, read the question properly and write the answer, complete answer with options. Okay. Next question is question number 2A. Identify and explain the concept. Okay. आपको concept identify करना है and फिर उसको explain भी करना है. See, Gauri collected the information about the income of a particular firm. That means यहाँ पे concept क्या है? It is a concept of microeconomics. तो आप जो concept लिखोगे, concept लिख के dash करके आपको लिखना है microeconomics. उतना लिख के आपको 1 मार्क मिलेगा. उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है या फिर डेफिनेशन. आप वो एक्सप्लेन करोगे. उस एक्सप्लेनेशन को आपको 1 मार्क मिलेंगे. ऐसे टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे आपको. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट. नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन. मतलब आपको डिफरेंस लिखना है. अभी कोई भी क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स, जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे दैट शुड कंपल्सरीली बी डेफिनेशन या फिर मीनिंग. अगर टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है तो कंपल्सरी यू आर सपोज टू राइट द डेफिनेशन विच विल कैरी 1 मार्क. अगर डेफिनेशन नहीं है तो आप मीनिंग लिख सकते हो, उसको आपको 1 मार्क मिलेगा. एंड सेकेंड पॉइंट है आपको डिफरेंस लिखना है. दोनों में जो डिफरेंस है वो लिखना है. ओके. सो डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर और मैक्रो का डिफरेंस क्या आएगा, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर. सो ये डिफरेंस आपको मेंशन करना है. वो डिफरेंस के लिए 1 मार्क. सो टोटल 2 मार्क्स यू विल गेट. सो डिस्टिंग्विश बिटवीन ये एनी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए. मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको एक डिस्टिंग्विश है. दैट मीन्स कंपल्सरी आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं.
तो फर्स्ट पॉइंट होगा डेफिनेशन या मीनिंग एंड सेकेंड पॉइंट होगा उन दोनों का डिफरेंस. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो आपको एनी 3 लिखने हैं 12 मार्क्स के लिए है, मतलब एक क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क. अभी ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं. Okay, see, I have given you the example. State any 4 features of perfect competition. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग लिखोगे या फिर डेफिनेशन लिखोगे एंड उसके बाद कोई भी 4 फीचर्स, टोटल 8 या 10 फीचर्स है, उसमें से कोई भी 4 फीचर्स आप लिखोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे. क्लियर? सो आपको स्पेसिफाई किया गया है 4 फीचर्स लिखने, तो आप 4 ही फीचर्स लिखोगे. Fine. Next, question 4. State with reason whether you agree or disagree with the following statement. आपको statement दिया जाएगा. The scope of microeconomics is unlimited. इसका आंसर क्या है? Disagree है, right? So you will write no. I do not agree with the statement. ये complete statement लिखने के लिए 1 mark है. अगर आपने सिर्फ लिखा agree या लिखा disagree, आपको half ही mark मिलेगा. So make a habit that you are going to write the sentence in a full form. That is, no, I do not agree with the statement. उसको आपको 1 मार्क मिलेगा. And उसको justify करने के लिए या उसका जो आप reason दोगे, 3 points should be there in the reason and that 3 points will carry 3 marks. ऐसे करके पूरा question is going to be of 4 marks. 1 mark is for the statement whether you are agreeing or disagree, and the rest 3 marks are for your explanation. Fine. Next is question number 5. Study the following table, figure, passage and answer the questions given below. आपको टेबल दिया जाएगा, वो टेबल को स्टडी करना है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. Here again no need to write the question, सीधा आंसर लिखना है. फिगर दिया जाएगा, फिगर के भी सिर्फ आंसर्स लिखने हैं. पैसेज में भी आपको 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस पूछेंगे और 4th क्वेश्चन जो होगा that is going to carry 2 questions will be asked and 3rd question is going to be of personal response. जहाँ पे पैसेज से रिलेटेड आपको एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना है which will be of 2 marks. Okay, which is going to be in your own words. That is for passage. तो ये तीनों में से कोई भी 2 आप अटेम्प्ट कर पाओगे या कर सकते हो and that is of 4 marks, मतलब टोटल 8 marks. And the last question, that is answer in detail. 8 marks के लिए एक क्वेश्चन है, आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है. तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? सपोज आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, लॉ ऑफ डिमांड है या फिर लॉ ऑफ सप्लाई है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले you will write the introduction. Okay, after introduction you are going to write the statement of the law. Statement of the law होने के बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे assumptions. उसके बाद आप शेड्यूल लिखोगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करोगे एंड उस ग्राफ एंड शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन दोगे and then you will write the exceptions of the law. So this is the sequence और accordingly आपके marks distribute हो जाएंगे वहाँ पे. So 8 marks के लिए आपको introduction लिखना है, assumptions लिखना है, statement of the law लिखना है, फिर शेड्यूल देना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका explanation देना है, exceptions लिखने हैं. This is how your answer is going to be. If it is asked, if the question is related to the law. अगर लॉ के अलावा कुछ है, सपोज राइट द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन दोगे, फिर मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दोगे, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दोगे, फिर जितने भी 8 या 10 फीचर्स है वो फीचर्स लिखोगे एंड एट द एंड कंक्लूजन लिखोगे कि ये दिस आर द अबव आर द फीचर्स of microeconomics. So this is the sequence how you are supposed to write the answer in detail,
हर एक पॉइंट को आपको मार्क दिया जाएगा. आंसर शुड बी इन अ सिस्टमैटिक वे. क्लियर. और पूरा पेपर सॉल्व करते समय प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करो. प्रेजेंटेशन पे भी आपको ध्यान देना है. ओके, सो दिस इज हाउ your paper pattern is going to be, and there are some few guidelines which I have given you. I hope those guidelines are going to be very very useful for you to solve your paper. So this was for 80 marks, और 20 marks जो है वो आपका ABT है, that is application based test. ठीक है. I hope you have understood this, and please do share this video with all the 12th standard aspirants, which is very very useful for them. Thank you friends.